السلام علیکم ناظرین رات سز 9 بجے تو خبر نامہ ہیت چھس بہ ساحل امین تہندس خدمتس مز حاضر تو پیش خبرن ہند تفصیل پاکستانس مز یہ حالی مہاجر ملت سند فرزند مولانا محمد احمد صاحب فوت سپد تچ آز میر وائز کشمیر مولوی محمد عمر فاروقن مرکزی جامعہ مسجد سرینگرس مز نماز جمعہ ادا کرنے برون لوکو اجتماع خطاب کران مہاجر ملت سز ہجرت گشران تمن تو مولوی محمد احمد صاحب زبردست الفاظن مز خراج پیش کورمت کہ تھی معلوم کہ پتمہ ہفتہ اس بوڑ تعزیت سانحہ پیش آو خاندان میر وائزس کہ سانہ خاندان بزرگ ترین شخصیت حضرت مہاجر ملت مفسر قرآن مولانا محمد یوسف شاہ رحمۃ اللہ علیہ تہند فرزند ارجمند باقیات السلف حضرت میر وائز مولوی محمد احمد صاحب اللہ تعالیٰ کریم تہند درجات بلند تمو کور انتقال کرنس دکھ کی تکیاز قدرتک ابدی حکم ازلی حکم پور اس واضح مز اس آو تمس گھن مگر افسوس یتو اس دوریر آسان یہ تکلیف بڑھاوان یہ دوریر اس 27 پہ سن خاندان وچ یل حضرت مہاجر ملت مفسر قرآن رحمہم اللہ وطن بدر آئی کر جرائے وطن آئی کرن تم وقت اس احمد صاحب محض 15 کن شرا ایس کے سی سرینگرس مز آز سرکار طرف تقریبی ہند ساز کرنا آمت یت مز وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ نائب وزیر اعلیٰ سریندر چودھری وزیر صحت سکینہ یتو تو ممبر پارلیمنٹ سرینگر آگاہ رولہ علاوہ انتظامی کے دویم ذمہ داروں تو محکمہ صحت کے ملازموں شرکت کر ات موقع پہ یہ نوین میڈیکل افسرن مز آرڈر تقسیم کرنا آئی تچ وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ میڈیکل افسرن مبارکباد پیش کران ونمت تمن ومید تم کرن پن فرائض چک سان ادا یت زن عام لوکن راحت وات یل زن سریندر چودھری سکینہ یتو تو آگاہ روح اللہ وون ہیلتھ سیکٹر مزید مضبوط بناونس حوالہ یہ بنیادی ڈھانچہ مضبوط کرنے تب ڈاکٹرن تو دویم عملچ تعیناتی حوالہ قدم تلنے یت زن دور دراز علاقن مز روزن والن لوکن طبی سہولت آیتن تھونس مز آسانی سپدے مجھے ابھی تک کسی نے یہ نہیں کہا نا ہمارے ایریا میں لائن مین نہیں ہے بجلی کا یا ہمارے سڑک کا انجینئر نہیں ہے یا واٹر سپلائی کا AW ہمارے علاقے میں نظر نہیں آتا لیکن ڈاکٹروں کی غیر موجودگی اور ٹیچروں کی پروفیسروں کی غیر موجودگی اس کا سب سے زیادہ اثر لوگوں پہ پڑتا ہے اب حقیقت یہ ہے کہ ہم چاہیں بھی تو ہم ہر کسی کو سرینگر اور جموں میں تعینات کر نہیں سکتے نہ ہم کرنا چاہتے ہیں ہمارا فرض بنتا ہے کہ ہم ہر کسی جموں کشمیر کے باشندے کو وہ سہولیات فراہم کریں جن کا ان کو حق ہے آج عام طور پہ ہسپتالوں کو لے کے لوگ شکایت کرتے ہیں شہر کے ہسپتالوں کے بارے میں بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس طرح کا علاج ان کو ملتا نہیں ہے جس طرح کی وہ امید کرتے ہیں یا جس طرح کا ان کا حق ہے لیکن خطا ہمارے ڈاکٹروں کی نہیں ہے خطا ان ہسپتالوں کو چلانے والے سپرنٹینڈنٹس کی نہیں ہے خطا ان مریضوں کی بھی نہیں ہے جو ان ہسپتالوں پہ پہنچتے ہیں خطا سب سے پہلے تو ہماری ہے کہ انفراسٹرکچر ہم صحیح معنی میں تیار کر نہیں سکے اگر دیہات کے علاقوں میں ہمارے ہسپتال ٹھیک چلے تو ہمارے شہر کے ہسپتالوں کی حالت خود بخود ٹھیک ہو جائے گی ہمارے شہر کی ہسپتالوں کی حالت خراب ہو جاتی ہے کیونکہ ہمارے لوگوں کو دیہات کے علاقوں میں معمولی چیزوں کے لیے بھی علاج نہیں ملتا
अब अगर नॉर्मल डिलीवरी के लिए भी हमारी बहनों को, बेटियों को ललदत आना पड़े, तो जाहिर सी बात है कि ललदत में दबाव ज्यादा बनेगा। अगर अपेंडिक्स निकालने के लिए या गॉल ब्लैडर की सर्जरी करने के लिए हमारे मरीज स्किम्स पहुंच जाएं, जो रेफरल अस्पताल स्किम्स को होना चाहिए था, जहां सिर्फ सबसे ज्यादा मुश्किल केसेस जो है वो रेफर हों, अगर मामूली सर्जरीज के लिए भी हमारे मरीज जो है स्किम्स पहुंचना शुरू हो जाए, तो फिर वो अस्पताल वो काम कर नहीं पाएगी जो करना चाहिए था उनको। तो मैं ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर साहिबा के साथ और डिपार्टमेंट के अफसरों के साथ बैठ के हमें कोई ऐसा तौर तरीका देखना होगा जिससे कि हमारे रूरल अस्पताल जो हैं वो ठीक तरह से चले। वो इलाके जो सर्दियों में कट जाते हैं, मुझे खुद अफसोस होता है, कभी कभी मैं शर्मिंदा हो जाता हूं जब दूर दराज इलाकों में हम जाते हैं और वहां कहते हैं, लोग कहते हैं ना फौज के अलावा हमें कुछ नहीं दिखता है ना। क्यों? हम क्या इतने गए गुजरे हैं कि बस फौज की बदौलत हम अपने लोगों को छोड़ें? कि अगर उनको फौज का डॉक्टर मिलता है तो उनकी खुशकिस्मती, क्योंकि सिविल अस्पताल में उनको डॉक्टर नहीं मिलेगा। मैं तो वो एक ऐसा दिन देखना चाहता हूं जहां उन इलाकों में सिविल डॉक्टर ढूंढते हुए फौज के लोग आए और कहें ना हम आपके डॉक्टर से अपना इलाज करवाना चाहते हैं। और वो मुमकिन है, मुश्किल नहीं है। डॉक्टर्स, आज हमें खुशी है कि आप में से काफ़ी सारे लोग आज अपने अपॉइंटमेंट लेटर लेने आए हैं, चाहे जम्मू सूबे से आए हैं, चाहे कश्मीर से हैं। आप सबको बहुत बहुत मुबारक और बधाई। जब आपसे बात करते हैं, जो हमारे गाँव में, दूर दराज इलाकों में और शहरों में जब कोई आदमी बीमार होता है, वो भगवान के बाद किसी पे अगर विश्वास करता है तो वो आप लोगों पे करता है। और सीधी भाषा में अगर बोला जाए तो लोग ये समझ के आते हैं अपनी जिंदगियों को बचाने के लिए कि हम उस भगवान के पास, एक भगवान ऊपर है जिसको किसी ने देखा नहीं, लेकिन आप वो भगवान हैं जिसको लोग देखते हैं। ये उम्मीद आपसे रखेंगे और ये भी उम्मीद करेंगे कि आप सब जम्मू मेडिकल कॉलेज या श्रीनगर मेडिकल कॉलेज के ऊपर ही तवज्जो नहीं देंगे, उन दूर दराज उन गरीबों को भी जाके उनका इलाज करने की कोशिश करेंगे। जो जम्मू में अगर कोई इलाज करेगा, यहाँ बैठ के जो लोग इलाज कराएंगे, ना उनकी दुआ लगेगी ना उनकी बद दुआ लगेगी, लेकिन उन पहाड़ों के बैठे उन लोगों को अगर आप ठीक करेंगे उनकी दुआ भी लगेगी। तो बदुआ तो कभी देते नहीं, लेकिन उनकी दुआ आपको जरूर लगेगी। अगर इलाज नहीं करोगे तो फिर कहीं ना कहीं उनकी बदुआ बड़ा असर करेगी। तो आप अगर उनकी आप दुआएं लेके चले जाएंगे उन पहाड़ों से, तो मैं आपको साफ कहता हूं, आपको मंदिर जाने की जरूरत नहीं, आपको गुरुद्वारे जाने की जरूरत नहीं, आपको मस्जिद जाने की जरूरत नहीं। सबसे बड़ी अगर ट्रीटमेंट अगर कोई आपको कुछ मिलेगा तो उन गरीबों से मिलेगा। मुझे खुशी है कि हमारे जम्मू कश्मीर में बहुत हमारे टैलेंटेड डॉक्टर्स हैं, और आज भी अगर हम नजर दोहराएंगे कि शायद पूरे कंट्री में या पूरी दुनिया में, मैं फख्र से कहती हूँ, जितने जम्मू कश्मीर के हमारे काबिल डॉक्टर्स हैं, ज़हीन है, उतने शायद कहीं हमें नहीं मिल पाएंगे। लेकिन कमियां बहुत हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके हैं, चाहे वो वैकेंसीज को लेके हैं। आज जो ये लिस्ट है वो 325 की लिस्ट है, और आज जो यहाँ पे अपॉइंटमेंट ऑर्डर दिए जाएंगे वो भी 25 हैं, क्योंकि इतना टाइम नहीं था कि ऑनरेबल सीएम साहब को सबको अपने हाथ से ऑर्डर दे पाते। लेकिन बाकी जो अपॉइंटमेंट ऑर्डर्स हैं वो भी तैयार हैं, और कुछ में 2-3 केसेस में अभी वेरिफिकेशन नहीं आई है। लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो 325 डॉक्टर्स हैं उनसे वो कमियां पूरी हो जाएंगी, और दूर दराज इलाकों में जो
ये जाएंगे और वहाँ पे लोगों को जो ज़रूरत थी वो ज़रूरत पूरी होगी. Most important of all, the doctors, those who got appointed today. I congratulate every one of you for your success. It is just a beginning, I guess. And I hope the way you worked very hard for yourself, for your personal achievement, you will translate this achievement into a collective achievement for the society. You will work as hard for the society from now on. You dedicated yourself for this objective, and God has been very graceful with you. He has rewarded you in a manner that you expected. Now the expectations are with you, that the society looks up to you for the services they deserve from you, the help that they deserve from you. You are a very important part of the society in its functioning, in its progress, in its growth, in terms of the services that you are going to provide. And your cause, your job is a noble job. You have many reasons to work harder now. You had only personal reason to work hard till now. Now that you have taken this job, you have more reasons, multiple reasons. मेंबर असेंबली थाना मंडी मुजफ्फर इकबाल खान आज ऐवानस मज दफा 307 वतलवित वोनमुत सुप्रीम कोर्ट तरफ दफा 307 हवाले दिन आमत फैसले विज अटार्नी जनरल सुप्रीम कोर्टस यकीन दितमुत जे जम्मू कश्मीर हुंद रियासती दर्जे जल्दी बहाल करने ताहम वन मरकजी सरकार तरफ यह रियासती दर्जे बहाल करने हवाले कह कदम तुलमुत. Union government through their attorney general made a pledge before the Honorable Supreme Court that it is this union territory status is a temporary. We are going to restore it very soon. That was the statement given by the Attorney General before the Constitutional Bench. And you know what happened? The Constitutional Bench, headed by Honorable Chief Justice of India, deferred this vital question, constitutional issue, to be decided. And in the judgment they said that we need not to decide this issue at this moment, because the Attorney General has given us an undertaking that they are going to restore the statehood very soon. Therefore, we defer this question to be considered for future litigation. Very strange enough. But yet the Honorable Supreme Court acted upon the suggestion made by the Attorney General. Almost give or take a few days. 1 year has lapsed. And there is nothing, not even a whisper on behalf of the Union government to restore the state. I intend to go back to the Honorable Supreme Court, and definitely I will go. I will request the Honorable Supreme Court to explain the words used in the judgment itself, when they have said that as early as possible, the statehood must be restored to Jammu and Kashmir. It is not only a statehood for us, it is an honor, a dignity of the people of Jammu and Kashmir. You have indicated. मकदम तो पेश मजीद खबरन तफसील. मेंबर असेंबली वर्मुल जावेद हसन बेगन आज ऐवानस मज दफा 307 सवाल पेश करना आमत रेजोल्यूशन हवाले कत करान वोनमुत नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी लूकन हुंद इज्जत वकार बहाल करने वाद बंद तो अमे हवाले यी कुन सूरत मज कह समझौत करने. हिंदुस्तान का मुसलमान उतना ही पक्का हिंदुस्तानी है जितने ये सारे और कहीं ज्यादा उनसे बेहतर. मैं आपकी हितों से अर्ज करना चाहता हूं कि तादाद की बुनियाद पर अगर ये समझा जाएगा कि हम किसी के सामने सर झुकाएंगे, किसी सियासी जवाब या किसी सियासी नजरिए के सामने, तो उनको याद रखना चाहिए कि हमारा एक अकीदा और हमारा एक नजरिया है. ये नजरिया हमको सिखाता है कि मुल्क के साथ वफा करो, मुल्क के इदारों के साथ वफा करो, लेकिन ये सर जब झुकता है तो सिवाय अल्लाह
तैयार हैं, लेकिन हमारा चलना उसको ये तस्वुर नहीं किया जाना चाहिए कि वो सरेंडर होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस फरियाद है जम्मू कश्मीर की आवाज, अवाम की आवाज है, इसकी उनके एस्पिरेशंस की तर्जुमानी करती है। और ये एस्पिरेशंस का अल्फाज हमारे गवर्नर एड्रेस में गवर्नर साहब ने खुद किया है। हमारी एस्पिरेशंस क्या है? इज्जत के साथ, विकार के साथ, उसूल की बुनियाद पर we want to go back to 4th August 2019 पोजीशन पर पहला मरहला, पहला पड़ाव हमारा। और ये इंतखाब हमने क्यों ये किया और बातचीत की बात हमने क्यों कहा कि बातचीत करनी, हम वहां रुकने वाले नहीं थे। वही बड़ा साहब, हम नहीं रुकने वाले 19 से, हमने तो पीछे चलना है। ऑनरेबल स्पीकर साहब, हमने पीछे चलता है। ये क्या रेजोल्यूशन से जो आता है, हम बातचीत इसलिए करना चाहते हैं कि हमने इसी असेंबली से एक रेजोल्यूशन पास किया है। आप ताकत के बलबूते पर नैरेटिव मत बदले। आप ये समझते हैं कि आप चालाकी से हमसे 370 पे दस्तखत करवाना चाहते हैं ताकि नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो इखलाकी और सियासी एजेंडा है, जो जहर कश्मीर का एजेंडा था, और वह एजेंडा क्या था कि हमने उधर ही जाना है जहां हमने वादा किया। हम उसमें कारबंद, हम कच्ची तौर पाकिस्तान के हक में नहीं, हम आजादी नहीं चाहते। ये मुल्क अगर आजाद है तो हम भी आजाद हैं। और एक बार याद रखें कि एक बहुत बड़े दानिश्वर ने कहा, अब ये नोट भी कर गए, उसने कहा है कि जिस देश का हुक्मरान गुलाम हो, वो देश की गुलाम। हमारे अब्दुल्ला साहब न किसी देश के गुलाम हुक्मरान हैं, न हम गुलामी को तस्लीम करते। और अगर हमको गुलाम समझा जाए और अगर हमें गुलामी की तरफ ट्रीट किया जाए तो फिर हम पर फर्ज आयद होता है कि हम अपनी उस आजादी की जंग लड़े जो आजादी इस मुल्क के अंदर रहते हुए हमारा हक है और जिस पर हमने आपके साथ इल्हाक किया। अगर ये इल्हाक कुछ शराइत की बुनियाद पर कायम हुआ है, या इल्हाक जब हमने किया तो हमारे नुमाइंदों ने जो भी थे, वो हिंदू था या मुसलमान था, वो जम्मू का था या कश्मीर का था, उसने साइन जिन शराइत पे किया। यपर मेंबर असेंबली गुरेज नज़ीर अहमद गुरेजन ऐवानस मज PDP जिक्र करान वोनमुत PDP तरफ दफा 307 खत्म करनस मज भारतीय जनता पार्टी अथवास करना आमुत आज लूकन गुमराह करने की कोशिश करने युवान। फिर यहाँ पर तीसरी साजिश की गई जनाब 2002 में एक पार्टी बनाई गई यहाँ के लोगों को कमजोर करने के लिए। उस पार्टी का लीडर कौन था जो आज रो रहे हैं, कस्बे बहा रहे हैं कि जम्मू कश्मीर के साथ नाइंसाफी हुई। आप लोग उन दिनों फौज के खिलाफ तकरीर कर रहे थे, जिनकी शेह पर कर रहे थे, दिल्ली वालों की शेह पर कर रहे थे। आपके SPSA क्यों नहीं लगा उन दिनों? आप जाके उन मलिक टिट्टू के घर में रोते थे, उसके खिलाफ आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई क्योंकि साजिश थी दिल्ली वालों को नेशनल कॉन्फ्रेंस को खत्म करने के लिए, जम्मू कश्मीर के लोगों को कमजोर करने के लिए। और उसके बाद फिर क्या हुआ? 2014 में हमने आपको कहा आ जाओ, हम आपको साथ देंगे, आप हुकूमत बनाओ, हमें हुकूमत में हिस्सा नहीं चाहिए, हम पत्ते पे लिख के देंगे आपको कि हमें हुकूमत करने की जरूरत नहीं है, आप हुकूमत कीजिए, लेकिन इस रियासत की सल्वत को बचाइए। मुझे एक आदमी ने कहा कि उमर अब्दुल्ला साहब ने मुझे मुफ्ती साहब के पास भेजा और कहा कि जाओ मुफ्ती साहब से कह दो, हाथ जोड़ के कह दो कि हम आपको मदद करने के लिए तैयार हैं, आप हुकूमत बनाइए, हम बाहर से करेंगे मदद, अंदर आना चाहते हो तो हम आपके साथ रह के हुकूमत करेंगे और 5 साल आप वजीर आला हो। और मुफ्ती साहब का जवाब था नहीं, मैंने दिल्ली वालों को वादा किया है। और उसके बाद आज 370 आप लहराने वाले, हाउस में आके लोगों को गुमराह करने वाले को मुबारकबाद देता हूं, जम्मू कश्मीर के लोगों को, जिन्होंने इनको पहचाना, जिन्होंने इनको कहा कि तुम ही असली गद्दार हो, तुम्हें तो इस रियासत का खात्मा किया जो प्रिंसली स्टेट थी। और ये BJP वाले, जम्मू वालों से पूछो ना, उनको नौकरी, बाजरी बाहर का, सीमेंट बाहर का, मजदूर बाहर का, ठेकेदार बाहर का, नौकरी बाहर वाले को, तुमको यहां दिल्ली वालों
इस रियासत की सालिमत के लिए लड़ो और हमारी नौकरियां वापस लाओ, हमारी जमीनें वापस लाओ, इस रियासत के वकार को बहाल करो। मेंबर असम्बली सुरनकोट चौधरी मोहम्मद अकरमन असम्बली मज आज मुख्तलिफ महकमन मज काम करन वालन डेलीवेज मुलाजमन हिज मुस्तकिली तो रहबर तलीम वस्तादन हिज ट्रांसफर पॉलिसी हिज जिक्र करान आईवानस मांग कर्मज यमन मामलन कुन गछ खास जोन दिन युन युद्ध जन तिमन बुथिन वल मुश्किल दूर करने यन। सर एक मेरी रिक्वेस्ट है कि जो हमारे डेलीवेजर और वहाँ जो खासकर जो हमारे आरईटी टीचर्स, सर आरईटी टीचर्स ये उस वक्त हमारी नेशनल कॉन्फ्रेंस ने ये पॉलिसी लाई थी और हमारे बहुत सारे बच्चों को वहाँ रोजगार मिला था और इन्होंने उसकी क्या हालत की है, किसी स्कूल को इन्होंने अपग्रेड नहीं किया, कोई वहाँ हालत इतनी खराब की है। सर उनकी जो जेन्युइन डिमांड है वो हमें देखने की जरूरत है। आरईटी टीचर की 2-3 चीजें उनकी बहुत ज्यादा जरूरत है सर उनको। एक उनकी ट्रांसफर पॉलिसी जो है उसको बहुत ज्यादा देखने की जरूरत है। एक जैसे यहाँ मेरे भाई ने कहा है ये ओल्ड पेंशन स्कीम, सर इसको भी ज्यादा लगाने की जरूरत है। हमारे अच्छा माइग्रेंट टीचर सर वो अच्छा सर दूसरे कुछ हमारी बेटियां जिनकी शादी यहाँ कश्मीर में हो चुकी है और यहाँ से पुंछ में हो चुकी है, उनके ट्रांसफर का मसला है, वो भी बहुत उसमें भी देखने की जरूरत है। सर दूसरे ये जो JRS है इनका भी देखने की जरूरत है। ये बेचारे भी इसी तरह बिजली में पानी में जितने भी शुपियनस में आज जिले इंतजामिया तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस में साज करना आमुत यह दौरान जिला तरक्याती कमिश्नर शुपियन मुतरफ करना आमचन मुख्तलिफ स्कीमन हवाले जराए इबलाग जान फराहम करान वोन जे प्रेस कॉन्फ्रेंस में मकसद यी जराए इबलाग के जरिए ये आम लोकन यमन स्कीमन हवाले जान दिन युद्ध जन तिम यमन स्कीमन हुन फायदा आसानी सान तुलित हैकन। आपके मीडियम से लोगों को कुछ नई स्कीम्स का बताना चाहते हैं। पहली जो इम्पोर्टेंट स्कीम है अभी ट्राइबल्स के बारे में आई हुई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, उसमें एक बड़ा प्रोग्राम भी 15 को होगा, वो भी हम आपको डिटेल शेयर करेंगे जब वो प्रोग्राम होगा। तो उसमें जो ट्राइबल हमारे हैं सारे विलेजेस जहाँ पे पॉपुलेशन जिस विलेज में 500 ट्राइबल्स है और वो विलेज 50% से ज़्यादा ट्राइबल पॉपुलेटेड है, तो उनके लिए ये आया है कि वहाँ पे हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या स्टेट गवर्नमेंट की हर कोई स्कीम को सैचुरेट करना है। मतलब कि अगर किसी के पास पक्का हाउस नहीं है तो हम उसको अलग से बजट लेंगे ट्राइबल डिपार्टमेंट से। अगर वहाँ पे जो सूर्यागर फ्री बिजली का वहाँ पे कोई इंटरवेंशन नहीं है वो करवानी है। अगर किसी के पास पानी का कनेक्शन नहीं है वो करवाना है। अगर वहाँ पे आंगनवाड़ी सेंटर नहीं है वो करवाना है। तो 25 जो लाइन डिपार्टमेंट्स हैं जो मेजर स्कीम्स रन करते हैं पब्लिक के लिए, तो वो 25 स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें बताया है कि इसमें आप देख लीजिए कि जो आपकी ट्राइबल पॉपुलेशन है जहाँ पे जो मैंने आपको पहले ही नाम बता दी, तो उसमें हमने पूरी एक्सरसाइज की है। तो शुपिया में हमारे 14 ऐसे ट्राइबल विलेजेस हैं जहाँ पर ट्राइबल पॉपुलेशन 500 से ज़्यादा है और वो 50% ऑफ द विलेज पॉपुलेशन से ज़्यादा है। उससे पहले ही हमने ये जो एक गुजर बस्ती खानका मेडर त्राल के लोगों तरफ शिकायत बावान वन आमद यदवे मकामी सड़कें हज खस्तहली तो साफ चनाब च व्यथ हवाले कई फिर हुकामन जान दिन आई, ताहम आज ताम कह कदम तुलना आमुत यम किन मकामी लूकन सठा मुश्किल वेतरन पेवान। मकामी लूकों तरफ इंतजामिया मांग करना आमद सड़कें शहर पर तलाकस मज लूकन साफ चनाब फराहम करने हवाले गन संजीद कदम तुलने युद्ध जन आम लूकन राहत वायद। अब देखो हमको कितनी दिक्कत है इस रोड की। जब कोई बीमार हो जाता है हमें उठाकर नीचे लाना पड़ता है। जब देखो यहाँ पानी की किल्लत है, रोड की किल्लत है, यार हमारी तजवाजा कोई नहीं देता है। इसलिए हम गुजारिश करते हैं मेहरबानी करके हमारी नई हुकूमत आई, उनको बहुत खुशी है इस बात की, हमारी रोड का या मौका किया जाए या हमारी देखा जाए। पानी नहीं है, कुछ भी नहीं है हम लोगों को। हम लोग को यार 50 साल पहले ये लोगों का हाल थे, जाते हैं बोलते आज करेंगे कल करेंगे, तो हमारे किसी ने तजवाजा नहीं दी। हमें पानी नहीं है, हमें रोड नहीं है। देखो नाली में इधर जब बारिश पड़ती है हमें बहुत दिक्कत आती है चलने फिरने में, हमारे कोई फैसिलिटी नहीं है। बाकी गांवों में देखो सब फैसिलिटी है, इधर कोई फैसिलिटी नहीं है। पानी की मुश्किल होती है, गाड़ी आती है उसमें भी मुश्किल है हमें। हमारे बच्चे देखो उनको भी मुश्किल, हमारे को बहुत दूर से पानी लाना पड़ता है।
जो हुकूमत आती है वो बोलती है आपको ये देंगे वो देंगे, हमें कुछ नहीं दिया है आज तक। और देखो ड्रेन हमारी, जब बारिश पड़ती है ड्रेन में पानी जो आता है वो सड़क पर आ जाता है, चलने फिरने में बहुत दिक्कत होती है हमारे को। हमारी ये गुजारिश है, हमें रोड PMJ के तहत काम होना चाहिए, नरेगा का जो काम आता है। तो नाजरीन, इस वक्त कोशिश खबरनामा दी इजाजत, खुदा सवाल।